Hello, all my dear students. Good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes. On the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. All my dear students, as you know, at present your revision classes is running in perspective with midterm examination, and as you know, at present we are taking chapter number 4, those are materials, metals or non-metals. So in previous videos we have discussed about the physical property of metals and non-metals. So it's time to study about the chemical properties of metal as well as non-metals. So let's quickly recap the previous topic. In previous topic we have discussed about the physical properties of metal, in which we have discussed about that metals are lustrous, they are hard, they are malleable, they are ductile, they are sonorous. So all these physical properties, as well as they are good conductor of heat and electricity. So all these points are earlier discussed. So today we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So without wasting the time, I am starting with chemical properties of metals and non-metals. Here we will discuss with five chemical reactions, or we can write 5 chemical properties, in which the first reaction with oxygen हम पहला डिस्कस करेंगे. Second, we will discuss here reaction with water, Third, we will discuss here reaction with acid, Next, reaction with bases, and the last, displacement reaction. Okay, so all these 5 chemical properties will be discussed here. So I am starting with the first, that is reaction with oxygen. So we will consider the first here, metals. So metals react with oxygen, to form metal oxide. For example, यहाँ से देख सकते हैं metal plus oxygen gives out metal oxide. This is the reaction number 1. Let's consider an example here. 4Na, this is the sodium, that is a metal, plus let's take the oxygen. क्या बनेगा बेटा? हमने बताया मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, तो सो Na2O क्या बन गया? Na2O. सो यहाँ पे हमने लिया 2, ले लेते हैं 2 Na2O. So there are 4 sodium, okay, and 2 oxygen. This is known as sodium oxide. इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, एक और ले लीजिए, दूसरा. दिस वाज द फर्स्ट. लेट्स कंसीडर वन मोर. 2Mg plus O gives out 2MgO. ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके बेटा, लेट्स कंसीडर अ पर्टिकुलर नोट. In note we will write all metallic oxide or metallic oxides are basic in nature
बेसिक इन नेचर, कैसे हमें पता चला? एंड turns the red litmus solution to blue। ठीक है बेटा, ये लिटमस सॉल्यूशन हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या कोई भी बेसिक है। सो हियर वी टेक द what litmus solution, and when we will mix with metallic oxide, it will turns the red litmus solution into blue color by confirming that this is the oxide of metals, or we can say that these are metallic oxide. So this was the reaction of metals we have considered here. Let's consider the reaction of non-metals. Non-metals reacts with oxygen to form non-metallic oxides, or we can write acidic oxide and forms acid when dissolved in water। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं, और वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी जो चीज़ें यहाँ पे थी मेटल्स के साथ उसी का उल्टा यहाँ पे है। यहाँ पे बेसिक था, यहाँ पे एसिडिक हो गया, यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड था, यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ, एंड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड। वो हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए C दैट इज कार्बन, O2 दैट इज ऑक्सीजन, क्या बनाएगा बेटा ये CO2। एक और ले लीजिए S दैट इज सल्फर प्लस O2, तो ये क्या है सल्फर, ये ऑक्सीजन है, इट विल फॉर्म SO2। सो दीज आर द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मैंने बताया कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। लेट्स कंसीडर हाउ दे फॉर्म द एसिड। पहला प्रोडक्ट ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। दिस वन इज वाटर, दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म एसिड। कौन सा एसिड बनाएगी, H2CO3, इसको आप कहते हो कार्बोनिक एसिड। नोट यहां से देखिए, टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, यानी यहां पे क्या था, रेड ब्लू में चेंज हो रहा था, यहाँ पे उसी का जो उल्टा है, ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विथ वाटर। ओके बेटा, दूसरा यहां से देखो, रिएक्शन विथ वाटर। पहला पॉइंट, मेटल्स को हम देखेंगे। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स कंसीडर मेटल प्लस वाटर, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड
पॉसिबिलिटी नंबर 1। सेकेंड आप लिख सकते हो और metal plus water, it may also form metal oxide. Let's consider an example here. Sodium 2Na plus 2H2O, ये water है, this one is sodium, this one is water, क्या बना लेगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो अगर मेटल का रिएक्शन हो गया वाटर से तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे भी एक नोट लगाइए, मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, gold do not react with water at any circumstances। यानी जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, ठीक है, Cu, सिल्वर है Ag और गोल्ड है Au, ये किसी भी कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करते। और दूसरा नॉन मेटल्स में देखेंगे हम, नॉन मेटल्स जनरली do not react with water, यानी नॉन मेटल्स वाटर से जनरली रिएक्ट नहीं करते। हमने 2 कंप्लीट कर लिया। लेट्स कंसीडर थर्ड, रिएक्शन विद एसिड। कैटेगरी नंबर 3, रिएक्शन विद एसिड। बात करेंगे किसकी, मेटल्स की। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड से और बनाते क्या हैं, सॉल्ट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ पे लिख सकते हो मेटल प्लस एसिड, कंक्लूजन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल ले लो, Zn plus H2SO4, this one is zinc, this one is सल्फ्यूरिक एसिड। यानी मेटल का हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड से। क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, इसको आप क्या कहते हो, जिंक सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से एक और ले लो, Mg प्लस H2SO4, ये क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना लेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको आप क्या कहते हो, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके बेटा, यहां पे अब देखेंगे बी, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स बहुत अच्छे हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एसिड। यहां पे हम एसिड लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद एसिड। इतना याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनका रिएक्शन हमने जब जिंक का एसिड से कराया और मैग्नीशियम का जब हमने एसिड से कराया। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। यहाँ से देखेंगे रिएक्शन विद बेस, तो इसमें लिखेंगे पहले मेटल्स। सो कॉमन क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ
do not react with base, do not react with base, but few like aluminium, जिसको आप क्या कहते हो Al, जिंक जिसको आप कहते हो Zn, लेड जिसे आप कहते हो Pb, react with bases like NaOH जिसको आप कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, to produce compound of that metal and हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली बेटा ये रिएक्शन जो कि बेस का है ये आपके हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, सो generally metals do not react with bases, but few metals such as aluminium, zinc and lead, they react with bases, and after reacting with bases they form compound of that metal, यानी जो मेटल है उसी का कंपाउंड बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। यहां से देखते हैं, फॉर एग्जांपल 2Zn plus 4NaOH, यहां पे हम लेते हैं इसको जिंक, ये आपका क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। यानी आप कह सकते हैं ये मेटल है प्लस दिस वन इज बेस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 2Na2ZnO2, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी यहां पे क्या बनेगा, कंपाउंड ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो दिस वन इज, लेट्स चेक द रिएक्शन, 2Zn, इधर भी 2 Zn है, 4Na 2 4Na, ये भी ठीक है, 4 ऑक्सीजन एंड रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड, 4 हाइड्रोजन but here 2, तो यहाँ पे आप लेंगे 2H2, so now your reaction is balanced। and non-metals generally not react with bases, non-reacts with bases, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। so this was all about the reaction with bases। लास्ट हम देखेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारा पांचवा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब क्या होना है, उसके अपने स्थान से किसी को अलग कर देना है, रिप्लेस कर देना। सो हियर जनरली metals react with salt solution, salt solution and displaces, or we can write replaces the less reactive metal। यानी यहां पे बात क्या होती है, जो ज्यादा पावरफुल है बेटा वो क्या करता है, जो कमजोर है उसको भगा देता है। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कोई लेस रिएक्टिव मेटल था, रिएक्शन हमने कराया तो ज्यादा रिएक्टिव जो है मेटल, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको उसके सॉल्यूशन से हटाया, रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देगा। एक रिएक्शन यहां से देख लीजिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दिस वन इज व्हाट, कॉपर सल्फेट, दिस वन इज जिंक, यहां पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। हियर
copper displaces copper displaced by zinc because zinc is more reactive than copper. यानी यहां से देखिए रिएक्शन क्या हुआ, zinc was reacting with copper sulfate solution and from here copper is just displaced or replaced by zinc. Why? ये क्या बना था, zinc sulfate, it was zinc sulfate. Why? Because here zinc replaces or displaces the copper. वही हमने यहाँ पे लिखा here copper displaced by zinc because zinc is more reactive than copper. So all my dear students, this was the chemical properties of metals and non-metals. In next video we will discuss about the application, or we can write uses of metals and non-metals. So I hope that after watching the video you will be able to understand the concept, and if you have any queries or doubt you can leave in your comment box, and if you are able to understand the concept you can also like the video, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.